ظہور اسلام کے وقت اس کی سب سے زیادہ مخالفت انہی لوگوں کی جانب سے عمل میں آئی جو قریش کے سب سے بااثر رئیس تھے اور جن کا اثر و اقتدار نسلاً بعد نسل چلا آتا تھا۔ ابو سفیان بھی رؤسائے قریش کا سب سے بااثر رئیس تھا اور جن کا اثر و اقتدار نسلاً بعد نسل چلا آتا تھا۔ ابو سفیان بھی رؤسائے قریش میں تھا اور بنی ہاشم کا حریف تھا، اس لیے اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں دوہری مخالفت تھی۔ چنانچہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی، مسلمانوں کی مخالفت اور اسلام کے استیصال میں سب سے پیش رہتا تھا۔ اسلام کے مٹانے میں انہوں نے اپنی پوری قوتیں صرف کر دیں۔ آغاز دعوت اسلام سے لے کر فتح مکہ تک اسلام کی مخالفت اور اس کی بیخ کنی کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ دعوت اسلام کے آغاز میں قریش کا جو وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آپ کی شکایت لے کر گیا تھا، اس کا ایک رکن ابو سفیان بھی تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی جو سازش ہوئی تھی، جس کے سبب سے آپ نے ہجرت فرمائی تھی، اس میں بھی ابو سفیان کا ہاتھ شامل تھا۔ کفر و اسلام کا سب سے پہلا مقابلہ بدر میں ہوا، اس میں ابو سفیان ناشریک ہو سکا۔ اس وقت وہ کاروان تجارت لے کر گیا ہوا تھا۔ بدر میں بڑے بڑے معززین قریش مارے گئے تھے، اس لیے سارا قریش جذبہ انتقام میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ مارے جا چکے تھے۔ ان کے بعد قریش کی مسند ریاست پر ابو سفیان بیٹھا، اس لیے بحیثیت سردار قوم کے مقتولین بدر کا انتقام ان کا پہلا فرض تھا۔ انہوں نے حلف لے لیا تھا کہ جب تک محمد سے بدر کا انتقام نہ لے لیں گے، اس وقت تک عورتوں کو نہ چھوئیں گے۔ اس حلف کے بعد 200 سواروں کا دستہ لے کر مدینہ پہنچا۔ یہاں کے یہود مسلمانوں کے خلاف تھے، اس لیے ابو سفیان ایک یہودی رئیس حی بن اخطب کے پاس گیا۔ رات کا وقت تھا، گھروں کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ ابو سفیان نے حی کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس نے دشمن کے خوف سے نہ کھولا، اس لیے وہ ابو سفیان کے دروازہ سے لوٹ آیا اور ایک دوسرے ممتاز یہودی اور بنی نذیر کے سردار اور خزانچی سلام بن مشکم کے پاس پہنچا۔ اس نے نہایت پرتباق استقبال کیا اور بڑی خاطر و تواضع کی، کھانا کھلایا، شراب پلائی اور ابو سفیان کی مہم کے متعلق بہت سی راز کی باتیں بتائیں۔ صبح کو ابو سفیان نے مدینہ کے قریب عریض پر حملہ کر کے کھجور کے باغوں کی ٹٹیاں جلا ڈالی اور ایک انصاری اور ان کے حلیف کو قتل کر کے لوٹایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے تعقب کیا۔ قرقرات القدر میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ابو سفیان بہت آگے نکل چکا ہے، اس لیے واپس تشریف لے آئے۔ اس واقعے سے ایک حد تک ابو سفیان کی قسم پوری ہو گئی، لیکن ابھی مقتولین بدر کا انتقام باقی تھا، اور جن جن لوگوں کے اعزہ و اقربا مارے گئے تھے وہ انتقام کے لیے بے چین تھے۔ چنانچہ ابو جہل کا لڑکا اکرمہ، عبداللہ بن ربیعہ، صفوان بن امیہ اور جن جن لوگوں کے اعزہ و اقربا مارے گئے تھے ابو سفیان کے پاس پہنچے اور کہا، آپ لوگ اپنے کاروائیں تجارت، یہ وہی کاروائیں تجارت ہے جو بدر کے زمانے میں سامان تجارت لے کر گیا تھا، کا نفع ہم کو دے دیجئے کہ اس کے ذریعے ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کا سامان کریں۔ ابو سفیان نے کہا، میں اپنا حصہ سب سے پہلے دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ قریشی خاندان کے ہر ممبر نے نہایت فراخ دلی کے ساتھ چندہ دیا۔ غرض قریش تیاریاں کر کے بڑے سر و سامان سے مسلمانوں کے استحصال کے لیے نکلی اور مدینہ کے پاس کوہ احد پر فوجیں اتاری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 700 جان نثاروں کی مختصر جماعت لے کر مدافعت کے لیے تشریف لے گئے۔ احد پر دونوں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی جان فروشی نے کفر کے ٹڈی دل کو پسپا کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی کے وقت مسلمانوں کا ایک دستہ پشت پر حفاظت کے لیے متعین کر دیا تھا کہ مخالفین عقب سے حملہ آور نہ ہو سکے۔ مشرکین کی پسپائی کو دیکھ کر اس دستے نے مال غنیمت کی تمام میں اپنا مرکز چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید مشرکین کے دستے کو لیے ہوئے منڈلا رہے تھے، انہوں نے میدان خالی پا کر عقب سے حملہ کر دیا۔ مسلمان اس ناگہانی حملے کی تاب نہ لا سکے اور بہت بری طرح پیچھے ہٹے۔ بہت سے مسلمان اس پسپائی میں شہید ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور زخمی اور دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ کے پاس چند جان نثاروں کے علاوہ کوئی باقی نہ رہ گیا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ بدحواس ہو رہا تھا، اس لیے آپ کی شہادت کی خبر اڑ گئی۔ ابو سفیان یہ خبر سن کر فرط مسرت سے پہاڑ پر چڑھ گیا اور فاتحانہ غرور میں با آواز بلند پوچھا، محمد ہیں؟
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मना कर दिया कि जवाब न दिया जाए। जब अबू सुफियान के सवाल का कोई जवाब ना मिला तो समझा नसीब दुश्मनाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम हो गया। दूसरी आवाज़ दी, इब्ने अबी क़ुफ़ा हैं। इस सवाल पर भी किसी ने कोई जवाब ना दिया। तीसरी मर्तबा उसने हज़रत उमर को पुकारा। इस मर्तबा भी जवाब ना मिला। ये खामोशी देखकर वो समझा कि सब ख़त्म हो गए हैं। हज़रत उमर से ज़ब्त ना हो सका। आप पुकार उठे, ओ दुश्मन खुदा, तेरे रुस्वा करने वालों को खुदा ने जिंदा रखा है। ये सुनकर उसने हुब्बल की जय पुकारी। ऐला हुब्बल, हुब्बल बुलंद रहे। सहाबा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से जवाब में कहा, अल्लाह आला व अजल, खुदा बरतर और बड़ा है। ये जवाब सुनकर अबू सुफियान बोला, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास हमारा माबूद उज़्ज़ा है और तुम्हारे पास नहीं है। सहाबा ने जवाब दिया, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, खुदा हमारा मौला है और तुम्हारा कोई नहीं है। अबू सुफियान कामयाबी के नशे में मखमूर था। बोला, आज का दिन बदर का जवाब है। लोगों ने बगैर मेरे हुक्म के मुसलमान लाशों के हाथ पांव काट लिए हैं, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस भी नहीं है। बरवायत इब्ने इसहाक हज़रत उमर ने यह सुनकर फरमाया, हमारे शुहदा जन्नत में हैं और तेरे मक्तूलीन जहन्नुम में। अबू सुफियान ने हज़रत उमर की आवाज़ सुनी तो पास बुलाकर पूछा, सच सच बताओ, मोहम्मद का काम तमाम हो गया या जिंदा है? आपने फरमाया, खुदा की कसम जिंदा है और तुम्हारी गुफ्तगू सुन रही हैं। ये सुनकर अबू सुफियान ने कहा, इब्ने कमा ने कहा था कि मैंने मोहम्मद का काम तमाम कर दिया, लेकिन मैं तुमको इससे ज़्यादा सच्चा समझता हूँ। इख्तिताम जंग के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियात से कुरैश के ताक़ुब में 70 आदमी भी भेजे ताकि वो दोबारा न लौट सकें। दूसरे दिन खुद बनफ्स नफीस मुकाम हमराल असद तक ताक़ुब में तशरीफ़ ले गए। आपका ख़तरा सही था। अबू सुफियान ये ख्याल करके कि अभी मुसलमानों का पूरा इस्तिसाल नहीं हुआ है, बमुकाम रूहार से दोबारा वापसी का कस्त कर रहा था कि इस दौरान में कबीला खुज़ा के रईस माबद से, जो मुसलमानों की शिकस्त की खबर सुनकर तस्दीक के लिए आया था और अब वापस जा रहा था, मुलाकात हुई। इससे अबू सुफियान ने अपना ख्याल जाहिर किया। उसने कहा, मैं अभी अपनी आंखों से देखता चला आ रहा हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सरो सामान के साथ आ रहे हैं कि उनका मुकाबला सख्त दुश्वार है। ये खबर सुनकर अबू सुफियान ने इरादा बदल दिया। उहद के बाद यहूदियों ने मुसलमानों के खिलाफ तहरीक शुरू की। अबू सुफियान इसमें भी पूरे तौर से मुआविन और मददगार थे। 5 हिजरी में जब तमाम अरब कबाइल ने मुसलमानों के इस्तिसाल के लिए मदीना पर हुजूम किया तो कुरैश भी अबू सुफियान की क़यादत में जमा हुए, लेकिन ये तूफ़ान हवा की तरह उड़ गया। यही मुत्तहिदा इज्तिमा जंग खंदक के नाम से मशहूर है। 6 हिजरी में जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब जवार के तमाम उमरा और फरमान रवाओं के नाम दावत इस्लाम के खतूत भेजे तो एक ख़त हरकल के नाम भी भेजा। वो सही ईसवी मज़हब का पैरो और हक़ का मुतलाशी था, इसलिए उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात मालूम करने चाहे। इत्तेफाक से उस वक्त कुरैश का कारवान तिजारत शाम आया हुआ था। इसमें अबू सुफियान भी था। हरकल ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात दरियाफ्त करने के लिए इस काफ़िले को इलिया तलब किया और तमाम अरकान सल्तनत के रूबरू तर्जुमान के ज़रिए से सवालात शुरू किए। सबसे पहले पूछा, तुम में कौन इस शख्स से जो अपने को नबी समझता है ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ रखता है? अबू सुफियान ने अपने को पेश किया कि मैं इसका करीब तर अजीज़ हूँ। हरकल ने इसे करीब बुलाया और दूसरे कुरैशियों से कहा, मैं इससे उस शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ सवालात करूँगा, जहाँ वो गलत जवाब दे तुम लोग फ़ौरन टोक देना। अबू सुफियान का बयान है कि उस वक्त मुझको अपने हमराहियों की तरदीद करने का ख़तरा ना होता तो मैं झूठ बोल देता। इस एहतिमाम के साथ सवालात व जवाबात शुरू हुए। हरकल, कुरैश में इस शख्स का नसब कैसा है? अबू सुफियान, कुरैश का आली नसब आदमी है। हरकल, इससे पहले तुम में से किसी ने नबूवत का दावा किया था? अबू सुफियान, नहीं। हरकल, शरफाओ मुअज़्ज़ज़ीन इसके पैरों हैं या कमज़ोर व नातवान? अबू सुफियान, नातवा व कमज़ोर। हरकल, इनकी तादाद बढ़ती जाती है या घटती है? अबू सुफियान, बढ़ती जाती है। हरकल, कोई शख्स इस मज़हब को कबूल करने के बाद इससे बेजार होकर मुर्तद भी होता है? अबू सुफियान, नहीं। हरकल, कभी इसने धोखा और फरीब दिया है? अबू सुफियान, नहीं, अलबत्ता इस दौरान में हाल मालूम नहीं। अबू सुफियान का बयान है कि इस सवाल के अलावा और किसी में मुझे अपनी तरफ से मिलाने का मौका नहीं मिला। हरकल, इस शख्स से और तुम लोगों से कभी कोई जंग भी हुई है? अबू सुफियान, हाँ। हरकल, इसका क्या नतीजा रहा? अबू सुफियान, कभी हम गालिब रहे और कभी वो। हरकल, वो तुमको किसी चीज़ का हुक्म देता है? अबू सुफियान, वो कहता है तन्हा खुदाए वाहिद की इबादत करो, उसमें किसी को शरीक न करो,
और अपने आबो अजदाद के मजहब को छोड़ दो। नमाज पढ़ो, खैरात करो, सलाह रहमी करो, पाक दामन रहो। इस गुफ्तगू के बाद हरकल को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और आपकी नबूवत का पूरा यकीन हो गया और उसने बतारिका के सामने अलल ऐलान आपकी रिसालत का एतराफ़ किया। बारगाह रिसालत से इस संगीन मुजरिम के लिए कत्ल की सज़ा नहीं तजवीज़ होती, कैद खाना की चार दीवारी में बंद नहीं किया जाता, जिलाए वतन का हुक्म नहीं मिलता, बल्कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन की अमली तफसीर होती है। फरमाते हैं अबू सुफियान, अफसोस का मुकाम है, क्या अभी वक्त नहीं आया कि खुदा के वहदानियत का इकरार करो? इस सवाल पर वो ज़बान जो मालूम नहीं कितनी मर्तबा रसूल अल्लाह के दिल पर तीर व नश्तर लगा चुकी थी, यूँ गोया होती है, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों, आप कितने बड़े शरीफ और कितने बड़े सिला रहमी करने वाले हैं। खुदा की कसम, अगर खुदा के सिवा कोई और माबूद होता तो आज मेरे काम ना आता। फिर इरशाद होता है, अबू सुफियान, तुम्हारी हालत काबिल अफसोस है, क्या अब वो वक्त नहीं आया कि तुम मुझे खुदा का रसूल मानो? जाहिली हिमयत और कौमी असबियत अब भी एतराफ़ रिसालत की इजाज़त नहीं देती। जवाब मिलता है, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हूँ, आप किस कदर हलीम, किस कदर शरीफ और किस कदर सिला रहमी करने वाले हैं। खुदा की कसम, अभी तक मुझको इसमें शक है। हज़रत अब्बास ये जाहली हिमयत सुनकर डांटते हैं, अबू सुफियान, इससे पहले कि सर तन से जुदा हो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलल्लाह कह लो। हज़रत अब्बास की डांट पर अबू सुफियान कलमा तौहीद पढ़ते हैं और वो सरकश जो जाहिली रौनत से खुदा के सामने भी ना झुकना था, आस्ताने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खम हो जाता है। सीरत इब्न हिशाम 2:235 ये वाक़या बुखारी में भी है लेकिन निहायत मुख्तसर है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ अबू सुफियान की जान बख्शी का ऐलान फरमाते हैं बल्कि उनके इस घर को, जिसमें 12 मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो चुकी थी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मशवरे हो चुके थे, मन दखल दारा अबी सुफियाना फहुआ अमन के ऐलान करम से बैतुल अमन करार देते हैं। कबूल इस्लाम के बाद जब हज़रत अब्बास इनको लेकर लौटने लगे तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया कि अबू सुफियान को पहाड़ की चोटी पर ले जाकर खड़ा कर दो कि अफवाज इलाही का जलाल और मुसलमानों के शौकत व अज़मत का तमाशा अपनी आँखों से देख लें। इस इरशाद पर हज़रत अब्बास ने उन्हें ले जाकर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर के बाद दरियाए इस्लाम में तलातुम पैदा हुआ, हर कबीले के परचम गुजरने लगे। पहले गिफ़ार का परचम नजर आया, फिर जुहैना और नदीम यके बाद दीगरे हथियारों में डूबे तकबीर के नारे लगाते हुए गुजरे। सबसे आखिर में अंसार का कबीला इस शान से परचम लहराता हुआ निकला कि अबू सुफियान मुतहय्यर हो गए और पूछा, ये परचम किसका है? हज़रत अब्बास ने नाम बताया। दफातन सरदार फौज हज़रत साद बिन अब्बादा हाथ में अलम लिए हुए बराबर से गुजरे। अबू सुफियान को देखकर पुकार उठे, अल-यौमु यौमुल मलहमतु अल-यौमु तस्तहिल्लुल काबतु, आज घुमसान का दिन है, आज काबा हलाल कर दिया जाएगा। अबू सुफियान घबरा गए और हज़रत अब्बास से कहा, आज मेरी हिफाजत तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है। सबसे आखिर में कौकबाए रिसालत नमूदार हुआ। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम के हाथों में अलम था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान के करीब से गुजरे और जमाल मुबारक पर उनकी नज़र पड़ी तो बावाज़े बुलंद पुकार कर कहा, आपको मालूम है अभी साद बिन अब्बादा क्या कह गए हैं? पूछा, क्या कहा? अबू सुफियान ने बताया। इरशाद फरमाया, गलत है, आज काबे की अज़मत का दिन है, आज इस पर गिलाफ चढ़ाया जाएगा।